إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے درس میں ہم نے سنا تھا کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں، کوئی بھی نماز ہو سورہ فاتحہ اگر جس نماز میں نہیں ہے وہ نماز ہی نہیں۔ تو یہ پہلے ہم نے سمجھا تھا۔ تو آج ہم سمجھیں گے سورہ فاتحہ کے پورے معنی۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، یہاں تک اللہ کی تعریف۔ اس کے بعد بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مالک یوم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد چاہتے ہیں، یہ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو آدھی جو ہے سورہ فاتحہ اللہ کی تعریف ہے، اور آدھی جو ہے بندوں کے لیے دعا کے لیے ہے، تو یہ بندہ اللہ سے دعا مانگے۔ تو اس لیے سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا لازم ہے اور ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم سمجھیں گے الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ کے پورے معنی۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ الحمدللہ کے معنی ہے، الحمدللہ کے معنی ہے یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، کیونکہ تعریفوں کا اصل حقدار مستحق صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ کسی کے اندر کوئی خوبی حسن یا کمال کی ہے تو وہ بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، اس لیے حمد و تعریف کا مستحق بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ یعنی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ کا نام جو ہے اللہ کا ذاتی نام ہے، اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ حدیث نمبر ہے 3383 میں لا الہ الا اللہ کو افضل ذکر اور الحمدللہ کو افضل دعا کہا گیا ہے۔ صحیح مسلم اور سنن نسائی کی اور ایک روایت ہے، حدیث ہے 223 میں الحمدللہ کو کہا گیا ہے میزان کو بھر دیتا ہے الحمدللہ۔ اسی کے لیے اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے کے انسان کھانے کے لیے بیٹھے یا پینے کے لیے بیٹھے تو اللہ کی حمد کرے اور اللہ کی تعریف کرے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2734 میں کہا گیا ہے کہ اللہ کے بسم اللہ کھانے بیٹھے تو بسم اللہ کا نام، اللہ کا نام لینا ضروری ہے۔ رب العالمین الحمدللہ ہو گیا، اس کے بعد رب العالمین جس کے معنی ہے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے والا اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا۔ اس کا استعمال بغیر اضافات کے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ رب العالمین
जहान की जमा है। वैसे तो तमाम खालिक के मजमूए को आलम कहा जाता है, इसलिए इसकी जमा नहीं लाई जाती, लेकिन यहाँ इसकी रबूबियत कामिल के इजहार के लिए आलम की भी जमा लाई गई है, जिससे मुराद मखलूक़ात की अलग अलग जिनसें हैं, यानी आलम जिन, आलम इंस, आलम मलाइका और चरिंदे परिंदे नबातात जो पेड़ पौधे हैं, ये भी आलम की जमा है। अर्रहमान निर्रहीम दोनों सिफत के सागी हैं, जिनमें मुबालिगा मौजूद है, यानी उनमें कसरत और दायम का मफहूम पाया जाता है, यानी अल्लाह ताला बहुत रहम करने वाला है और इसकी ये सिफात दिगर सिफात की तरह दायम है, यानी रहमान में रहीम की निस्बत ज़्यादा मुबालिग है, इसीलिए या रहमान दुनिया वल आखिरत कहा जाता है। दुनिया में इसकी रहमत आम है, जिससे बिला तखसीस काफिर और मोमिन सब फैज़याब हो रहे हैं, और आखिरत में वो सिर्फ रहीम होगा, यानी इसकी रहमत सिर्फ मोमिन के लिए खास होगी। सूरे अल आराफ आयत नंबर 156 में अल्लाह का फरमान, फसा अक्तुबूहा लिल्लज़ीना यत्तक़ूना वयूतूना ज़काता वल्लज़ीना हुम बिआयातिना युमिनून, यानी वो रहमत इन लोगों के लिए ज़रूर लिखेगा जो अल्लाह से डरते हैं और ज़कात देते हैं और जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं। अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम का सिलसिला एक हद तक जारी रहता है, ताहम इसका मुकम्मल ज़हूर आखिरत में होगा और अल्लाह ताला हर शख्स को इसके अच्छे या बुरे अमाल का जजा और सजा देगा। इसी तरह दुनिया में आरज़ी तौर पर और भी कई लोगों के पास तहतुल असबाब इख्तियारात होते हैं, यानी तहतुल अखबाब इख्तियारात होते हैं, यानी कि कोई बादशाह है, कोई अमीर है, कोई जो है लोगों से काम लेने वाला है, जो बादशाह है, मतलब जो एक रियाया को चलाने वाला है, वो भी एक जो है तहतुल असबाब इख्तियारात होते हैं उसके पास भी। लेकिन आखिरत में तमाम इख्तियारात का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही होगा। सूरह मोमिन में आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला ने फरमाया, लिमानिल मुल्कुल यौमा, आज किसकी बादशाही है? फिर वही जवाब देगा, लिल्लाहि वाहिदुल कहर, एक गालिब अल्लाह के लिए। और सूरह अन-फतर आयत नंबर 19 में अल्लाह ताला ने फरमाया, यौमा ला तमलिकुल नफ्सुल लिनफ्सिन शैआ वल अम्रु यौमइज़िन लिल्लाह, इस दिन कोई हस्ती किसी के लिए इख्तियार नहीं रखेगी, सारा मामला अल्लाह के हाथ में होगा। वो होगा जजा का दिन, यानी आखिरत का दिन। इबादत के मानी है किसी की रजा के लिए इंतहाई तजलील व दुआए जजा और कमाल खुजू का इजहार करना, यानी कमाल में मोहब्बत, खुजू और खौफ के मजमूए का नाम इबादत है, यानी जिस ज़ात के साथ मोहब्बत भी हो, इसके
माफूक अलअसबाब, ताकत के सामने आजिजी व बेबसी का इजहार भी हो, और असबाब व माफूक अलअसबाब, जराए से इसकी गिरफ्त का खौफ भी हो। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, वो वहां तक हो गया। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन फरमाया जिससे मकसद इख्तिसास पैदा करना है, यानी हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद चाहते हैं। इस एतबार से ना इबादत किसी और के लिए जायज़ है और ना इस्तिआनत ही किसी और से जायज़ है। इन अल्फाज से शिर्क का सिदबाब कर दिया गया है, लेकिन जिनके दिलों में शिर्क का रोग रह पाया गया है वो फामूक अल-असबाब, माफूक अल-असबाब और मताहत अल-असबाब इस्तिआनत में फ़र्क को नज़रअंदाज करके अवाम को मगालिती में ढाल देते हैं और कहते हैं कि देखो हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और मदद हासिल करते हैं, बीवी से मदद हासिल करते हैं, ड्राइवर से मदद हासिल करते हैं, और इस तरह वो ये बारदर करते हैं कि अल्लाह के सिवा और भी इंसानों से मदद मांगी जा सकती है। हालांकि असबाब के मतहत एक दूसरे से मदद चाहना और मदद करना ये शिर्क नहीं है, ये तो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निज़ाम है जिसमें सारे काम ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक होते हैं। हत्ता के अंबिया भी इंसानों के मदद हासिल करते रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया आयत नंबर 14 में सूरह अल सफ में, मन अंसारी इलल्लाह, अल्लाह के दीन के लिए कौन मेरी मदद करेगा। अल्लाह ताला ने अहले ईमान को फरमाया सूरह मायदा में आयत नंबर 2 में, वतआवानु अलल बिर्री व तक़वा, नेकी और तक़वे के कामों पर एक दूसरे की मदद करो। जाहिर बात है कि ये ताउन ममनू है ना शिर्क, मतलब वो महमूद है। इसका अस्तिलाही शिर्क से क्या ताल्लुक। शिर्क तो ये है कि इसे ऐसे शख्स से मदद तलब की जाए जो ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से मदद कर सकता हो, जैसे किसी फौत शुदा शख्स, ऐसे शख्स से मदद तलब की जाए जो ज़ाहिरी असबाब के लिहाज से मदद ना कर सकता हो। जैसे किसी फौत शुदा शख्स को मदद के लिए पुकारना, इसको मुश्किल कुशा हाजत रवा और समझना, मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला समझना, इसको नाफा वज़ार बावर करना, नाजार बावर करना, और दूर और नज़दीक से हर एक की फरियाद सुनने वाला बहर तस्लीम करना, और इसको बहर तस्लीम करना, इसका नाम है माफूक असबाब, तरीके से मदद तलब करना, और इसी खुदाए सिफात से मुतासिफ मानना, इसी का नाम है शिर्क। इसी का नाम शिर्क है। जैसे कि किसी पीर को, बाबा को जैसे बुलाना, मददगार समझना, दूर से जो है वो हमें अच्छा करता है, वो किधर की है, हमें अच्छा करने वाला है, वो समझना। जो ये सभी चीज़ें जो है अल्लाह के लिए ख़ास है, ये सब चीज़ समझना, मुश्किल कुशा हाजत रवा बिगड़ी बनाने वाला सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई भी नहीं। तो ये समझने वाले जो है ये शिर्क कर रहे हैं अल्लाह के साथ में। जो किसी
को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला समझना, वो शिर्क है। इसी का नाम शिर्क है। जो बदकिस्मती से मोहब्बत औलिया के नाम पर मुसलमान मुल्कों में आम है। अइज़्ज़नल्लाह मिन्हु। तौहीद के तीन किस्में हैं। तौहीदुल रबूबियत, तौहीदुल अल वाहियत, तौहीदुल अस्मा व सिफात। ये तीन किस्में हैं तौहीद की। तौहीद रबूबियत का मतलब है कि इस कायनात का खालिक मालिक सिर्फ एक अल्लाह है, और मुदब्बिर सिर्फ अल्लाह है। इसे तौहीद को मानने वाले जो है कुछ समझदार है, कुछ समझते हैं, वो ही समझ के सीधे रास्ते पे चलते हैं। हत्ता के मुशरिकीन भी इसके कायल रहे हैं। और यही जैसे कि सूरह यूनुस आयत नंबर 31 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया है कि हत्ता के मुशरिकीन भी इसके कायल रहे हैं। और यहाँ जैसे कि कुरान करीम ने मुशरिकीन मक्के का एतराफ़ नकल किया है। मसलन फरमाया, ऐ पैगंबर, इनसे पूछो कि तुम को आसमान और ज़मीन में रिज़्क़ कौन देता है? तुम्हारे कानों और आँखों का मालिक कौन है? और ज़मीन और आसमान को पैदा करने वाला कौन है? तो फट से कहेंगे कि अल्लाह। आयत नंबर 38 में सूरह अल ज़मूर में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन का खालिक कौन है, तो यकीनन यही कहेंगे कि अल्लाह। एक और मकाम पर अल्लाह ताला ने फरमाया, सूरह अल मोमिनून आयत नंबर 23, 84 और 89 में फरमाया, अगर आप इनसे पूछें कि ज़मीन और ज़मीन में जो कुछ है ये सब किसका कौन इसका मालिक है? सातवें आसमान और अर्श अजीम का मालिक कौन है? हर चीज़ को बादशाह के हाथ में है। हर चीज़ की बादशाह किसके हाथ में है? और वो सबको पनाह देता है और इसके मुकाबले कोई पनाह देने वाला नहीं। इन सब के जवाब में ये यही कहेंगे कि अल्लाह, यानी ये सारे काम अल्लाह ही के हैं। आप किसी को भी पूछो, दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं, हिंदू है, मुसलमान है, क्रिश्चियन, जितने भी लोग हैं, किसी को भी पूछो ये सब चीज़ का मालिक कौन है, तो अल्लाह ही बोलेंगे, ऊपर अल्लाह ही बोलेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि फला पीर, फला वो, फला नहीं। हर चीज़ को बनाने वाला बोलेंगे सिर्फ अल्लाह, लेकिन यकीदा किसी और के ऊपर, अल्लाह के ऊपर नहीं। आगे तौहीदुल वाहियत का मतलब है, तौहीदुल वाहियत, तौहीदुल रबूबियत का मतलब हो गया। तौहीदुल वाहियत का मतलब है कि इबादत की तमाम अक़साम का मुस्तहिक सिर्फ अल्लाह ताला है। और इबादत हर वो काम है जो किसी मखसूस हस्ती की रज़ा या इसकी नाराज़ी के खौफ से किया जाए। इसलिए नमाज, रोज़े, हज और ज़कात सिर्फ यही इबादत नहीं है, बल्कि किसी हस्ती से दुआएं इल्तिजा करना, इसके नाम की नज़र नियाज करना, इसके सामने दस्तबस्त खड़ा होना, अदब से खड़ा होना इसके सामने। जैसे आजकल के लोग जाते दरगाह पे, अदब से खड़े होते, इज्जत देते, इज्जत से करते। दरगाह हो या कोई भी चीज़ हो, जैसे इंसान के सामने भी लोग
अदब से खड़े हो जाते, यजमान है, बड़ा है बल्कि। ये सिर्फ अदब सिर्फ अल्लाह के लिए है, कोई इंसान के लिए, कोई मुर्दे के लिए, कोई कब्र के लिए, किसी के लिए अदब नहीं है। सिर्फ अल्लाह के लिए हाथ बांधना है, जैसे हम नमाज में हाथ बांधकर अदब से खड़े होते हैं, ये सिर्फ अल्लाह के लिए जायज़ है। इल्तिजा करना, इसके नाम की नजर नियाज, इसके सामने दस्त बस्त खड़ा होना, इसका तवाफ करना। इसका तवाफ भी करते बहुत सी जगह पे, ये दरगाह बना के उसका तवाफ भी कर रहे लोग। इससे तामे और खौफ रखना, इससे खौफ रखना, डरना, अल्लाह से डरना नहीं, इन लोगों से डरते और वगैरह भी इबादत समझते हैं। तौहीदुल वाहियत ये है, तौहीदुल वाहियत ये है कि ये तमाम काम सिर्फ अल्लाह ही के लिए जायज़ है। जितने ये लोग काम करते हैं, अदब से खड़े रहना, अदब से उठना, अदब से बैठना, उनकी इज्जत करना, उनसे डरना, कब्र वाले से डरना, जबकि वो मुर्दा है। अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह पे कहा कि फुकरा, कुल्लु फुकरा, सब फकीर है, अल्लाह के आगे सब फकीर है। तो उसी तरीके से किसी इंसान के सामने भी हाथ बांध के खड़ना, उससे इज्जत देना, ये भी जो है एक अल्लाह को जो है हम बेइज्जत करें जैसा, नऊज़ बिल्लाह। तो अल्लाह की जो है इज्जत करना हमारे लिए, हम कहते हैं कि अल्लाह है, ये सब चीज़ अल्लाह की है कहते हैं, लेकिन काम क्या कर रहे हैं? किसी के सामने झुक रहे, दूसरे से डर रहे, अरे वो ऐसा वो ऐसा डरते हैं लोग। तो ये जितनी सिफात है तौहीदुल वाहियत, ये सिर्फ तमाम काम सिर्फ अल्लाह ही के लिए जायज़ है। ताहम ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक जिंदा इंसानों से तबे तमा या तबे खौफ तौहीद के माने मुनाफे नहीं है। कब्र परस्ती के मर्ज में मुब्तिला अवाम व खौस इस तौहीदुल वाहियत में शिरक का इर्तिकाब करते हैं और मज़कूरा इबादत की बहुत सी किस्में वो कब्रों में मुदफन है। कब्रों में दफन अफरादी जो गुजर गए, जो दफन है कब्रों में, दरगाह वाले, पीर फकीर जो दफन है, जो दफन है फौत शुदा बुजुर्गों के लिए भी करते हैं। तौहीदुल अस्मा व सिफात, अब तौहीदुल अल वाहियत हो गया और तौहीदुल अस्मा व सिफात के मतलब हैं कि अल्लाह ताला के जो अस्मा व सिफात कुरान व हदीस में बयान हुए हैं, इनको बगैर किसी तावील और तहरीफ के तस्लीम करना और वह सफ़ात इस अंदाज में किसी और के अंदर ना मानना। मसलन जिस तरह इसकी सफ़ात आलिमुल गैब है या दूर और नज़दीक से हर एक की फरियाद सुनने वाला है, फरियाद सुनने वाला परवरदिगार है का कायनात में हर तरह का तसर्रुफ करने का इसे इख्तियार हासिल है। ये यादगार सिफात इलाही में से कोई भी सिफात अल्लाह की किसी नबी वली या किसी भी शख्स के अंदर तस्लीम ना की जाए। जो अल्लाह की सिफात है वो किसी के अंदर भी तस्लीम ना करना चाहिए। अगर तस्लीम की जाएगी तो वो शिर्क कहलाएगा। अफसोस है कि कब्रों के पुजारियों में शिर्क की ये किस्में भी आम है और इन्होंने अल्लाह के मज़कूरों सिफात में बहुत से बंदों को भी शिर्क कर रखा है, शरीक कर रखा है। अनज़ल्लाह मिनहुम। हिदायत के दो मफहूम है, रास्ते की तरफ रहनुमाई करना
रास्ता बतला देना, इसे इरशाद दौलत या रात अल तरीक कहते हैं। रास्ता बतलाना, रास्ता दिखाना किसी को भी अरबी में तरीक कहते हैं। दूसरे मफहूम रास्ते पर चला देना, मंजिल मकसूद पर पहुंचा देना। इसे अरबी में तौफीक और असलाह इला अल मतलुब से ताबीर किया जाता है, यानी हमारे शर्त सिराते मुस्तकीम की तरफ रहनुमा फरमाना, इस पर चलने की तौफीक और इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाता कि हम तेरी रजा हासिल कर सकें। ये सिराते मुस्तकीम महज अकल और ज़हानत से हासिल नहीं हो सकती। ये सिराते मुस्तकीम वही इस्लाम है जिसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया के सामने पेश फरमाया और अब कुरान व हदीस सही हदीस में महफूज है। ये सिराते मुस्तकीम की वजाहत है कि ये सीधा रास्ता है जिस पर वो लोग चलें जिन पर तेरा इनाम हुआ है। ये वो रास्ता है जिस पर तेरा इनाम हुआ है, उस पर हमें चला। अंबिया, सोहदा, सिद्दीकीन और सालेहीन का जैसे कि सूरह निसा में है आयत नंबर 69 में, वमन युति इल्लाह वरसूल फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिमुल मिन नब्बिय्यी वस्सिद्दीकीना वस्सुहदाई वस्सालिहीना वहसुना उलाइका रफीकन। सूरह निसा आयत नंबर 69। और जो अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है वो क़यामत के रोज़ इन लोगों के साथ होगा जिन पर अल्लाह ने इनाम किया, यानी इन अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालेहीन, और इन लोगों के रफ़ात बहुत ही खूब है। इसी तरह इसी आयत में ये भी वजाहत कर दी गई है कि इनाम या फतह लोगों का ये रास्ता, इनाम याफ्ता लोगों का ये रास्ता ताअत इलाही और ताअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का रास्ता है, ना के कोई और रास्ता। अब सीधा रास्ता हमें सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम के माने में जो अंबिया, शुहदा, सालेहीन जो रास्ते पे चले, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रास्ता दिखाया वो है सिरातल मुस्तकीम। उसी रास्ते पे हर मोमिन को चलना लाजिम है और ज़रूरी है। तो हदीस पढ़ना चाहिए, कुरान पढ़ो, हदीस पढ़ो, इसमें हर चीज़ आपको मालूम होंगी और आप सही रास्ता पकड़ के सही रास्ते पे चलेंगे, ना कि हम गुमराह होंगे। अगर हम गुमराह हो गए तो हमारा ठिकाना क्या होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। इब्ने अबी हातिम कहते हैं कि मुफस्सिरीन के दरमियान इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं, वला आलमू फी हाजल हरफी अख्तिलाफ बैनल मुफस्सिरीन फीही तफसीरिल मग़ज़ूबी अलैहिम बिल यहूदी वज़्ज़ालीना बिल अंसारी। तफसीर इब्ने अबी हातिम, तफसीर जो है हातिम रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बयान किया है। इसलिए
सिरात अल मुस्तकीम पर चलने की ख्वाहिश रखने वाले के लिए ज़रूरी है कि वो यहूदी और नसरानी दोनों की गुमराही से बचकर रहें। यहूदी की बड़ी गुमराही थी कि वो जानते बूझते सही रास्ते पर नहीं चलते थे। ये आयत इलाही में तहरीफ और अहियाल करने से गुरेज नहीं करते थे। हजरत अजीर को इन्होंने इब्नुल्लाह कहा और वो अपने अहबार व रहनुमा को हराम व हलाल करने का मुजायजा समझते थे। नसरानी की बड़ी गलती ये थी कि इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की शान में गुलू किया। इब्नुल्लाह कहा और सलासा कहा और सलासा कहा, अल्लाह का बेटा, और 3 खुदाओं में से एक करार दिया। अफसोस है कि उम्मत मोहम्मदी में भी अफरात व गुलू की ये गुमराही आम है और इसी वजह से वो दुनिया में जलील व रुस्वा हो रहे हैं। सूरह फातिहा के आखिरी में आमीन कहने की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी ताकीद और फजीलत बयान फरमाई है। इसलिए आमीन और मुक्तदी हर एक को आमीन कहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहरी नमाज में ऊंची आवाज में आमीन कहते थे और सहाबी रजी अल्लाह तआला अन्हा भी, हत्ता के मस्जिद गूंज उठती थी। इस मसले के लिए देखें, और जो है कई हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है, सही बुखारी की हदीस है, हदीस नंबर 780 से 782, और सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 853 और सुनन इब्ने दाऊद हदीस नंबर 934 और अब्दुल रज़ाक हदीस नंबर 997 में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई जगह पे कहा है कि आमीन जो है जोर से कहना लाजिम है, ज़रूरी है। आमीन के माने हैं, ऐ अल्लाह हमारी दुआ कबूल कर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।